हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग टेस्ट पेपर डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। द ionic product of water at 65 degrees Celsius is 16 into 10 power minus 14. What is pH of pure water? You have to find pH of pure water, right? So pure water, see pure water के लिए हमें पता है H plus and OH minus concentration equal होता है, right? Now see Kw is given. Kw is 16 into 10 to the power minus 14. Okay. So we can write Kw. Kw ionic product is concentration of H plus into concentration of OH minus, and for pure water H plus and OH minus is equal. So we can write this as H plus square. So concentration of H plus will be root of Kw. That is root of 16 into 10 power minus 14. So you will get 4 into 10 power minus 7. This is H plus concentration, right? So pH क्या हो जाएगा आपका, माइनस लॉग ले लेते हैं, तो 7 माइनस लॉग ऑफ 4. लॉग 4 को हम लोग लिख लेते हैं लॉग 2 स्क्वायर. तो दिस इज 7 माइनस 2 लॉग 2. दिस इज 7 माइनस लॉग 2 इज 0.3. 7 minus 0.6. So you will get 6.4 as the correct answer. So first option is correct. pH of pure water will be 6.4. Question number 32. Which of the following is strongest conjugate base? तो इसमें हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट जो आपका वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस. कॉन्सेप्ट इज वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस and strong acid has weak conjugate base. This is concept. Okay, so you have to find out which are the following has strongest conjugate base. So strong conjugate base उसी का होगा जो आपका weak acid होगा. weak acid का conjugate base strong होता है, strong acid का conjugate base weak होता है, right? तो अगर हम Cl minus, फर्स्ट ऑप्शन इज Cl minus, तो Cl minus इज conjugate base of HCl एंड HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस आपका वीक होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा. हमें स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस सर्च करना है. एसिटेट आयन, एसिटेट आयन इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड आपका कैसा होता है, वीक एसिड होता है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये कैसा होगा आपका, स्ट्रॉन्ग होगा. तो सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. अगर हम थर्ड देखें तो सल्फेट आयन इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो सल्फेट आयन आपका हो जाएगा वीक कॉन्जुगेट बेस, राइट. फोर्थ वन इज नाइट्रेट आयन. नाइट्रेट आयन इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3. HNO3 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो नाइट्रेट आयन हो जाएगा आपका वीक कॉन्जुगेट बेस. तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस आपका होगा एसिटेट आयन, which is conjugate base of weak acid, acetic acid. Question number 33. Ostwald dilution law is applicable to which of the following solution? So Ostwald dilution law is applicable for weak acids. It is applicable क्योंकि आपका सपोज कोई HA एसिड है, तो इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होना चाहिए, तभी हम इसका K की वैल्यू लिख सकते हैं. देन ओनली K इज डिफाइंड, राइट. So Ostwald dilution law is applicable for weak acid, and weak acid is second one, acetic acid. So correct option is acetic acid. अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो वहां पे आपका इरिवर्सिबल बनेगा और K डिफाइंड नहीं होगा. So K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली डिफाइंड फॉर वीक एसिड्स जिसमें आपका इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो रहा है. So सोडियम सल्फेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल नहीं होगा ओस्टवाल्ड लॉ, राइट. CH3COH इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा. NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, HNO3 इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. सो द कॉन्सेप्ट इज, वी कैन राइट द कॉन्सेप्ट इज Ostwald's dilution law is applicable for weak electrolytes.
Ostwald's dilution law is applicable for weak electrolytes. Okay, next we will see question number 34. The pH of a solution obtained by mixing 15 ml of 0.1 molar HCl and 35 ml of sulfuric acid. Okay, so in this question, first of all, we will find H plus concentration. So H plus concentration will be M1 V1 plus M2 V2 total moles upon total volume. V1 plus V2. HCl is 0.1 molar, volume is 15 ml, N factor is 1. For sulfuric acid, molarity is 0.2, volume is 35, N factor of sulfuric acid is 2, divided by V1 plus V2, 15 plus 35. So after solving, you will get 1.5 plus 14 divided by 50. So this will be 3.1 divided by 10. So this is H plus concentration. So what will be pH? Minus log ले लेते हैं. So minus log 3.1 plus log 10. So this will be 1 minus 0.5, that is 0.5. So pH will be 0.5. 0.5 is the correct answer. Next is question number 35. A gives B, Kc is given 2, B gives 2C, Kc is given 4, C gives D, Kc is given 6, and you have to find Kc for A gives 2D. So A gives 2D कैसे आएगा आपको? तो हम लोग क्या करते हैं, 1 and 2 को ऐड करते हैं एंड थर्ड में आपको 2 से मल्टीप्लाई करके देन उसको ऐड करेंगे. ओके, तो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे, सो व्हाट वी आर डूइंग, 1 plus 2 plus 2 times of 3. So what we will get, A plus B plus 2C gives B plus 2C plus 2D. B and B कैंसिल हो जाएगा, 2C and 2C कैंसिल हो जाएगा. So फाइनल आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, A gives 2D and A gives 2D. इसी पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए हमें Kc की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऐड करते हैं, जब भी हम लोग रिएक्शंस को ऐड करते हैं, अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट. अगर हम 2 रिवर्सिबल रिएक्शंस को ऐड कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी मल्टीप्लाइड. एंड अगर हमने किसी इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन किसी पर्टिकुलर इंटीजर से मल्टीप्लाई किया है तो k वैल्यू विल बी रेज्ड टू द पावर दैट इंटीजर, राइट. सपोज यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 6 स्क्वायर हो जाएगा, राइट. सो व्हाट विल बी Kc फॉर दिस रिएक्शन, 2 into 4 into 6 स्क्वायर, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्क्वायर बन जाता है, राइट. सो करेक्ट आंसर विल बी 2 into 4 into 6 स्क्वायर. Number 36. Equal volume of 3 acids having pH 3, 4, 5 are mixed. What will be concentration of H plus that you have to find? Okay. So see how to solve this question. So we'll find out H plus in the final solution. So H plus in the final solution कितना हो जाएगा आपका, M1 V1 plus M2 V2 plus M3 V3 upon total moles upon total volume. M1, see H plus pH is 3. If pH is 3, so H plus concentration कितना आ जाएगा, 10 to the power minus 3, right. So first equation में H plus concentration first जो आपका एसिड दिया हुआ है जिसका pH 3 है, इधर आपका मोलैरिटी कितना हो जाएगा, 10 power minus 3 into वॉल्यूम इज V. Let us assume that volume is V. सेकेंड एसिड का H प्लस कंसेंट्रेशन 10 का पावर माइनस 4 इंटू वी. थर्ड एसिड का H प्लस कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू वी डिवाइडेड बाई V प्लस V प्लस V. वॉल्यूम इज इक्वल. सो V कॉमन ले लेते हैं, V को कॉमन लेके हम लोग कैंसिल कर देंगे. सो दिस विल बी 10 टू द पावर माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं. सो दिस विल बी 100 प्लस 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई
3, v हमने कैंसिल कर दिया, so this will be 111/3 into 10 power minus 5. So after solving you will get 3.7 into 10 power minus 4. So second option is correct. Question number 37. H2 plus I2 gives 2HI. So for the above reaction, H2 is added to the reaction mixture at equilibrium, then correct concentration versus time graph is. So H2 is added at equilibrium. So अगर हमने H2 ऐड कर रहे हैं, अगर हमने इक्विलिब्रियम पे ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम पे H2 ऐड कर रहे हैं, रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो सी जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट. व्हाई इट इज इनकरेक्ट? बिकॉज यहाँ पे जो आपको कंसेंट्रेशंस, रेस्पेक्टिव कंसेंट्रेशंस दिए हैं, क्योंकि हमने H2 ऐड किया है, बट H2 ऐड करने के बाद भी कांस्टेंट बोला है, तो कांस्टेंट नहीं रहेगा. H2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, तो यहाँ पे क्या होंगे, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा. H2 concentration will not remain constant because we are disturbing the equilibrium. करेक्ट ऑप्शन इज 1. अगर हम फर्स्ट में ग्राफ देखें तो फर्स्ट का जो ग्राफ बना हुआ है इस तरह से बना हुआ है. This is H2 concentration, I2 concentration, HI concentration. So इनिशियली आपका रिएक्शन कैसा है, इक्विलिब्रियम पे है. तो इक्विलिब्रियम पे जब रिएक्शन होता है तो वहां पे क्या होंगे, रेस्पेक्टिव कंसंट्रेशन कांस्टेंट होते हैं. अगर आपका रिएक्शन कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे है तो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन चेंज नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली कांस्टेंट रहेगा. बट जैसे ही हमने H2 ऐड किया तो H2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, ऑल ऑफ सडन इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ सडन इंक्रीज किया है H2 का, क्योंकि हमने कंटेनर ओपन करके, जो भी आपका रिवर्सिबल रिएक्शन कंटेनर ओपन करके H2 ऐड कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ सडन H2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा. अगर हम देखें सेकंड में, तो सेकंड ऑप्शन में H2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है. आप अगर सेकंड ग्राफ को देखेंगे तो H2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं होगा. हमने क्योंकि ऐड किया है H2 ऐड किया है, तो ऑल ऑफ सडन H2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा. तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. फोर्थ ऑप्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया इनकरेक्ट है. अगर हम थर्ड एंड फर्स्ट में देखें तो थर्ड ऑप्शन में क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, इस तरह से आपका डिक्रीज नहीं होगा, स्लोली डिक्रीज होगा, कर्व्ड नेचर का आएगा ग्राफ, राइट. तो हमने क्या किया कि H2 जब ऐड किया तो H2 का कंसंट्रेशन ऑल ऑफ सडन इंक्रीज हो गया, देन इसके बाद रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा तो H2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, I2 का डिक्रीज होगा, HI का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा. So H2 concentration will decrease slowly, I2 concentration will decrease slowly and HI concentration will increase slowly. And slowly increase होके क्या हो जाएगा, again new equilibrium will be established. So again ये concentration क्या हो जाएगा, after some time it will be constant. ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमने रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्टर्ब कर दिया, इक्विलिब्रियम को थोड़ा टाइम लगेगा. आफ्टर सम टाइम अगेन न्यू इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड एंड जो न्यू इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ओल्ड इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होगा, राइट. सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट. अगर आपने इस तरह से ड्रॉप किया है तो इस तरह का ड्रॉप नहीं आएगा, कर्व्ड नेचर में ड्रॉप होगा. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, राइट. क्वेश्चन नंबर 38. pH of water at 50 degree Celsius can be. So see at 25 degree Celsius, 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का pH कितना होता है, 7 होता है आपका. अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो वी नो दैट Kw इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज किया तो Kw इंक्रीज होगा, Kw इंक्रीज होगा, सो देयर विल बी मोर डिसोसिएशन ऑफ वाटर. और अगर वाटर का डिसोसिएशन ज्यादा होगा तो H प्लस कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा एंड H प्लस कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो pH विल डिक्रीज, राइट. तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मोर डिसोसिएशन वाटर का होगा, H प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ेगा, H प्लस कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो pH डिक्रीज हो जाएगा. सो 7 से pH डिक्रीज हो जाएगा.
pH will be pH at 50 डिग्री सेल्सियस will be less than 7. लेस देन 7 में आपको देखो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करना था, आपको सिर्फ आइडिया लेना था कि pH लेस देन 7 होगा या ग्रेटर देन 7 होगा और इक्वल टू 7 होगा. तो करेक्ट आंसर इज pH विल बी लेस देन 7. सो इन ऑप्शंस में अगर हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन में लेस देन 7 है, बाकी सभी ऑप्शन में ग्रेटर देन 7 और इक्वल टू 7 है. तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 39. The reaction quotient of this is given. Reaction will proceed in right to left means backward direction. तो backward direction में कोई भी रिवर्सल रिएक्शन तभी प्रोसीड करता है जब आपकी K की वैल्यू Q से कम होती है. तो करेक्ट आंसर आपका होगा C. If reaction quotient is greater than K or you can say that K is less than Q, in that situation reaction will proceed in backward direction. So correct answer is Q is greater than K. Question number 40. Aniline is a very weak base. Which of the following aniline solution will have highest alpha? So since we know for weak base के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ KB बाई सी. KB तो आपका कांस्टेंट होता है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट. तो अगर हमने डाइल्यूशन कर रहे हैं, जिस बेस का कंसंट्रेशन कम होगा, स्मॉलर द कंसंट्रेशन ऑफ बेस, मोर विल बी अल्फा. सो C minimum, alpha will be maximum. तो minimum concentration of aniline is 0.01. So 0.01 molar aniline concentration के लिए alpha highest होगा. Lesser the concentration of aniline, higher will be alpha. Or we know that by dilution alpha increases. By dilution alpha increases. Right? Question number 41. At infinite dilution the percent ionization of both strong and weak electrolyte is 100%. मैंने आपको बताया था, अगर हम इसी इक्वेशन से देखें, अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर KB बाई सी. KB is constant. If C tends to 0, and in that situation alpha will tend to 1. So at infinite dilution, we know that at infinite dilution each and every electrolyte behave as strong electrolyte. So alpha will be 1. Alpha 1 means 100% dissociation. At infinite dilution, weak electrolytes also undergo 100% dissociation. Question number 42. Reaction is given, you have to find percentage of CaCO3 remaining. So first of all we will write reaction. CaCO3 gives calcium oxide plus CO2. This is reaction, right? 20 gram is given, so 20 by 100, that is 1 by 5 mole. Initially 1 by 5 mole is taken. Next at equilibrium 1 by 5 minus x, this will be x, this will be x. Now for CO2 we will apply PV is equal to nRT. Pressure is given 1, volume is 10, number of moles we have to find, number of moles of gas, okay, into R is 0.08 into temperature is 1200 Kelvin. So from here x will be 10 divided by 0.08 into 1200. So this will be 1 by 1.2 into 8. You can write like this, 1.2 into 8. So this will be 1 by 9.6, which will be approximately 0.10. Right? So percentage of CaCO3 remaining. Percentage of CaCO3 remaining. How much CaCO3 is remaining? 1 by 5 minus x. Out of 1 by 5 minus x is remaining. 1 by 5 means 0.2 minus x is remaining out of 0.2 into 100. So after solving you will get x is 0.1. So this will be approximately 50%. Okay. So correct answer will be B option is correct, 50%. Question number 43. The exothermic reaction is represented by equation N2 plus 3H2 gives
twice of NH3, delta H is negative, it is given, delta H is negative. Okay, so which of the following will increase the quantity of NH3? तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करना, हमें प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करना है. सी फर्स्ट ऑप्शन, इंक्रीजिंग टेम्परेचर. सिंस दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और मैंने आपको क्लास में बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से के की वैल्यू डिक्रीज होती है. और के डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट भी डिक्रीज होगा, राइट. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से के की वैल्यू डिक्रीज होती है, के डिक्रीज होगा तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा. So this is not the correct option because we want more product, more concentration of product. B option is increasing volume of container. अगर हमने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को इंक्रीज किया है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल, जो भी हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम क्या करता है, उसको अपोज करता है. तो अगर हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा. तो इक्विलिब्रियम क्या करना चाहेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना चाहेगा. प्रेशर इंक्रीज कब होगा, अगर आपका रिएक्शन शिफ्ट हो रहा है मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ. रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स. मोर नंबर ऑफ मोल्स किधर है, मोर नंबर ऑफ मोल्स आपके बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगा. तो अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है तो आपका NH3 का कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट ऑप्शन. रिमूविंग N2, अगर आपने N2 को रिमूव किया है, N2 रिमूव कर रहे हैं तो रिएक्शन बैकवर्ड में चला जाएगा. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट ऑप्शन. डी ऑप्शन देखते हैं, एडिंग H2. अगर आपने H2 को ऐड किया है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा. H2 ऐड करने से रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा. रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा, अमोनिया, मोर एंड मोर अमोनिया विल बी फॉर्म. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. Question number 44. In which of the following equilibria will increase in pressure at constant temperature increases the yield of product? So again we have to see, we have to increase the concentration of product. So we are increasing the pressure. तो अगर हम लोग अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल प्रेशर क्या होना चाहेगा, डिक्रीज होना चाहेगा, उसको अपोज करेगा. हमने प्रेशर को इंक्रीज किया है तो अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन विल अपोज दैट whatever we are doing, इक्विलिब्रियम दैट रिवर्सिबल रिएक्शन विल अपोज दैट. प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या चाहेगा, प्रेशर को डिक्रीज करना. प्रेशर डिक्रीज कब होगा, मींस रिएक्शन लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट होगा. रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स. ओके, तो अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया है तो रिवर्सिबल रिएक्शन प्रेशर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा. प्रेशर डिक्रीज तभी होगा अगर रिएक्शन आपका लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है. लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, राइट. तो आपको बोला है कि इंक्रीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्रीज द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट. तो लेस नंबर ऑफ मोल्स, प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होना चाहिए. सो लेस नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए प्रोडक्ट की तरफ. तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसका डेल्टा Mg कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. फर्स्ट ऑप्शन के लिए डेल्टा Mg पॉजिटिव है, मींस मोर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट की तरफ है. तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा. सो दिस इज नॉट करेक्ट, हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है. increases the yield of product. Okay, second option delta Ng for second option is also positive. तो यहाँ पे भी आपका रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा. दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन में देखिए डेल्टा Ng कितना आ रहा है आपका, 4 - 5 नेगेटिव. डेल्टा Ng इज नेगेटिव मींस रिएक्शन आपका फॉरवर्ड में जाएगा. मोर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल बी फॉर्म बिकॉज लेस नंबर ऑफ मोल्स किधर है. अगर हम थर्ड रिएक्शन देखें तो थर्ड रिएक्शन में लेस नंबर ऑफ मोल्स आपके रिएक्टेंट साइड में आ रहे हैं. प्रोडक्ट साइड में 4 मोल्स है, रिएक्टेंट साइड में 5 मोल्स है. तो रिएक्शन आपका लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर. लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, लेस नंबर ऑफ मोल्स किधर है आपके, फॉरवर्ड. लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. और आप इस क्वेश्चन को ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हम QP का एक्सप्रेशन लिखें तो QP का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर स्क्वायर इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 स्क्वायर.
divided by number of moles of HCl to the power 5 into number of moles of O2 into total pressure upon total moles to the power delta Ng is -1, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं QP इज इक्वल टू दिस इंटू NT अपॉन PT टू द पावर 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, QP ड्रॉप हो जाएगा, QP कम हो जाएगा, और अगर QP आपका लेस हो गया KP से तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और यही हमें चाहिए था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा इंक्रीज करना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड। Number 45. On adding 0.04 gram of NaOH to 100 ml of barium hydroxide, calculate the change in pH. So first of all, we'll find out initial OH minus concentration. So initial OH minus concentration will be 1 by 200 into 2, because barium hydroxide ब्रेक होगा तो आपको 2 हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेंगे, तो into 2 करना पड़ेगा। So this will be 2 by 100, 200, that you can write 10 to the power minus 2. So POH will be 2, pH will be, initial pH is 14 minus 2, that is 12. So initial pH is 12. Now after adding NaOH, what will be OH minus concentration, 10 to the power minus 2, तो आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड की वजह से हो गया, प्लस 0.04 ग्राम NaOH ऐड कर रहे हैं, मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml ही रहेगा, सॉलिड का वॉल्यूम नेग्लेक्ट कर देते हैं लिक्विड के कंपैरिजन में, तो 0.1 हो जाएगा। सो दिस विल बी 2 into 10 power minus 2। तो यहाँ पे आपका POH आ जाएगा 2 minus log 2, दिस विल बी POH 2 minus log 2, that is 2 minus 0.3, 1.7। So pH will be 12.3। So what is change in pH from 12 to 12.3? So change in pH is delta pH is 0.3. 0.3 is the correct answer. Option 2, 0.3. Question number 46. Ionic product of water at 25 is given. The ionic product at 90 degrees Celsius is asked. Okay. So we know that अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका क्या होता है, KW इंक्रीज होता है, KW इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो KW इंक्रीज होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर कौन सा आना चाहिए, 10 to the power minus 14 से ज्यादा होना चाहिए 90 डिग्री सेल्सियस पे। सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड वन। ओके, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर KW इंक्रीजेस। Question number 47. Consider various species generated when H3PO4 dissolved in water. Among these, the conjugate acid of HPO4 2-. So HPO4 2-, HPO4 2-, this is amphiprotic because it can lose H plus and it can accept H plus also. Now हमें इसका conjugate acid बताना है, इसका कॉन्जुगेट एसिड बताना है, इसका मतलब HPO4 2- बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा। अगर ये बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा तभी इसका कॉन्जुगेट एसिड लिख सकते हैं, और बेस जब H+ एक्सेप्ट करता है तो वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। तो इसमें हमें क्या करना है, H+ एक्सेप्ट करा देना है, 1 H+ ऐड कर देना है, तो H2PO4 1- हो जाएगा। ठीक है, हमें HPO4 2- का कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, इसका मतलब वो बेस की तरह बिहेव कर रहा होगा, और बेस में H+ जब हम लोग ऐड करते हैं तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। सो HPO4 2- में 1 H+ ऐड कर देंगे, सो करेक्ट आंसर इज H2PO4 1-। क्वेश्चन नंबर 48. Which of the following can act as both Bronsted acid and Bronsted base? Cl- के बाद H+ नहीं है तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह बिहेव नहीं कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें HCO3-, HCO3- H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है, ये बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, और HCO3- कैन लूज H+ ऑल्सो,
to give carbonate ion. That means HCO3 minus, it is an empty protic substance. It can accept H plus also and it can lose H plus also. So Bronsted acid and Bronsted base, correct option is second one. HCO3 2 minus can act as both Bronsted acid and Bronsted base. अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें H3O प्लस, सो H3O प्लस आपका H प्लस लूज तो कर सकता है to give water, but ये H plus accept नहीं कर सकता है, it cannot accept H plus, right? फोर्थ ऑप्शन देखें OH माइनस, तो OH माइनस आपका H प्लस एक्सेप्ट तो कर सकता है बट ये H प्लस लूज नहीं कर सकता है, राइट? तो फोर्थ ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 49. गिवन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, some inert gas at constant volume is added, then choose the correct option. So N2 plus 3H2 gives twice of ammonia. This is reaction. Okay. So अगर हम इसका QP का एक्सप्रेशन लिखें तो QP का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 into number of moles of H3 cube. These are the respective number of moles at equilibrium. Into total pressure upon total moles to the power delta Ng. This is according to formula. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डेल्टा Ng -2 है तो ये रिवर्स हो जाएगा Nt अपॉन Pt टू द पावर 2. डेल्टा Ng इज -2. इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं Nt अपॉन Pt टू द पावर 2. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या है आपका कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट. तो अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. तो अगर हमने इनर्ट गैस ऐड किया है तो इनर्ट गैस ऐड करने से टोटल मोल्स बढ़ते हैं, इनर्ट गैस ऐड करने से टोटल मोल्स बढ़ते हैं, बट उसी रेशियो में टोटल प्रेशर भी बढ़ता है. ओके, सो ऑन एडिंग इनर्ट गैस टोटल मोल्स विल इंक्रीज एंड इन द सेम रेशियो टोटल प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों सेम रेशियो में इंक्रीज हो रहे हैं. सपोज ये Nt डबल हो गया, Pt भी डबल हो गया, तो यहाँ पे क्या कोई चेंज आएगा? देयर विल बी नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम because total moles and total pressure both will increase in the same ratio, so there will be no effect on QP, no effect on equilibrium. Question number 50. pH of 0.1 molar ammonium hydroxide. So first of all we will check Kb by C ratio. So Kb by C will be 1.8 into 10 power minus 5 divided by 0.1. We can write 1.8 into 10 power minus 4. So now this is less than our desired number. Desired number is 25 into 10 power minus 4. मैंने आपको बताया था Kb by C का रेशियो अगर 25 into 10 power minus 4 से कम है तो we can neglect alpha. Alpha can be neglected with respect to 1. ये हमने क्लास में देखा था, अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टू 1. तो यहाँ पे हम लोग OH माइनस कंसेंट्रेशन को डायरेक्टली लिख सकते हैं C इंटू अल्फा. C इंटू अल्फा इन प्लेस ऑफ अल्फा वी कैन राइट Kb by C. So this will be Kb into C. Kb is 1.8 into 10 power minus 5 into C is 0.1. So this will be 1.8 into 10 power minus 6 root. So we can write root of 1.8 into 10 power minus 3. So POH क्या हो जाएगा आपका 3 minus half of log of 1.8 लिख सकते हैं इसको. That will be 3 minus half of log of 18 by 10. Okay, 3 minus half of log of 18 को लिख सकते हैं 3 square into 2 minus log 10, right? So this will be 3 minus half of log of 2 log 3, 2 into log 3 is 0.48 plus log 2 is 0.3 minus log 10 is 1. So this will be 3 minus half of 2 into 0.48 plus 0.3 minus 1. This will be 0.26. So this will be 3 minus 0.13. So you will get 2.87, right? So pH will be 14 minus 2.87, that is 11.13 is the correct answer. 11.13 is the correct answer. Fourth option is correct.
राइट। तो इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स लॉग की प्रॉपर्टीज हमें यूज करना है। ओके, तो हमने 18 को 3 स्क्वायर इंटू 2 इस तरह से लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51। Two solid A and C dissociate. So A solid is given, it is dissociated into B plus T. So let सॉलिड का इक्विलिब्रियम पे प्रेशर क्या होगा, सॉलिड का तो जीरो होगा, इसको हम लोग P1 मान सकते हैं, तो इसको P2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज C सॉलिड आपका ब्रेक हो रहा है, C सॉलिड ब्रेक हो रहा है E प्लस D में। सो एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल बी रेस्पेक्टिव प्रेशर, सॉलिड नो प्रेशर, लेट अस एज्यूम दैट दिस इज, नहीं यहाँ पे आपका सपोज B का प्रेशर P1 है तो D का भी P1 होगा, क्योंकि दोनों 1:1 के रेशियो में है। सपोज E का प्रेशर आपका P2 आ रहा है तो D का भी प्रेशर P2 आएगा, क्योंकि दोनों के सेम मोल्स हैं। अगर मोल्स सेम है तो प्रेशर भी सेम होगा, कंटेनर का वॉल्यूम सेम है, राइट। तो B एंड D के मोल सेम है तो उनके पार्शियल प्रेशर भी सेम होंगे, E एंड D के मोल सेम है तो उनके पार्शियल प्रेशर भी सेम होंगे। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज द केस ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, मींस ये दोनों ही सेम कंटेनर के अंदर हो रहे हैं। तो अगर सेम कंटेनर के अंदर हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, P1 प्लस P2, P2 प्लस P1, क्योंकि D का जो इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर है वो डिफरेंट नहीं हो सकता है, बोथ आर प्रेजेंट इन द सेम कंटेनर। ओके, नाउ Kp value is given, so P1 into P1 plus P2, this can be written as 625, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन P2 into P1 plus P2, ओके, सॉलिड तो आएगा नहीं Kp का एक्सप्रेशन में, दिस इज 975। सो ऐड कर देंगे, ऐड 1 and 2, सो ऐड करने पे आपको क्या मिल जाएगा, P1 plus P2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, so P1 plus P2 will be 40। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, ट्वाइस ऑफ P1 plus P2, so this will be 2 into 40, that is 80। so 80 atm is the correct answer, क्योंकि टोटल प्रेशर में क्या आएगा आपका, P1 plus P2 plus P1 P2, that is twice of P1 P2, correct option is 80 atm। question number 52, 2 moles of PCl5, so first of all we will write the reaction, PCl5 dissociates into PCl3 plus Cl2, this is reaction। okay, now initially 2 moles is taken, next step will be 2 minus, क्योंकि यहाँ पे अल्फा कितना 80%, 80% मीन 0.8, so this will be 1.6, 1.6, so 2 minus 1.6, that is remaining amount of PCl5 will be 0.4। now we will find Kc, so Kc क्या हो जाएगा आपका, कंटेनर का वॉल्यूम दिया 5 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करेंगे तो कंसेंट्रेशन आएगा आपका, डिवाइडेड बाय PCl3 कंसेंट्रेशन इंटू Cl2 कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय PCl5 कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.4 डिवाइडेड बाय 5, so this will be 1.6 into 1.6 into 5 divided by 25 into 4, so after solving you will get 5 into 5, this is 4 into 4, so you will get 6.4 divided by 5। now we have to find Kc into 50, so Kc into 50 will be 6.4 into 50, that is 64 is the correct answer, so 64 is the correct answer। question number 53, pH value of 10 to the power minus 4 molar NaOH, so OH minus concentration कितना हो जाएगा, 10 to the power minus 4, so POH will be 4, pH कितना हो जाएगा 14 minus 4, that is 10, 10 is the correct answer। question number 54, acid is given having 3 salts, तो 3 salts बन रहे हैं, इसका मतलब 3 एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, 3 salts, the acid is forming 3 salts, that means it has 3 acidic hydrogens, okay, an acid with molecular formula forms 3 salts, 3 type of salts, that means 3 acidic hydrogen, and number of replaceable H atoms is called basicity, so basicity of acid, that means how many acidic hydrogens it has, that is 3, the correct answer is 3, basicity of acid will be 3 because it has 3 acidic hydrogens।
Question number 55. First we will write reaction CH3COH plus C2H5OH gives CH3COO C2H5 plus water. So initially हमने 1 मोल लिया है, then 50% डिसोसिएट हो रहा है, 1 मोल ऑफ इथेनॉल इज टेकन and in 1 liter flask and 50% of acetic acid is converted into ester. So this is 0.5, alpha is 0.5, 1 minus 0.5, this will be 0.5, this will be 0.5. So first of all हम लोग Kc की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपका वॉल्यूम 1 लीटर है तो जो आपके मोल्स हैं वही आपका कंसेंट्रेशन होगा. तो Kc की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.5 into 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 into 0.5 दैट इज 1. Kc की वैल्यू 1 आ रहा है. अब ये जो Kc की वैल्यू 1 आ रहा है, हमें पता है कि Kc की वैल्यू Kc do not change by changing initial concentration. This is concept. Kc do not change by changing initial concentration. मतलब हमने अभी रिएक्शन में क्या किया, पहले हमने 1 मोल लिया था तो Kc 1 आ रहा है. अगर हमने 1 मोल की जगह पे कुछ और मोल्स लिया है तो भी Kc की वैल्यू सेम ही रहेगी. Kc do not change by changing concentration. दैट इज कॉन्सेप्ट. तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, Kc की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट किया है सेम Kc की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, राइट. तो यहाँ पे हमने x:1 के रेशियो में आपको क्वेश्चन में गिवन है. नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 33% डिसोसिएट हो रहा है तो x/3 ये हो जाएगा 1 minus 1/3, दिस विल बी 1/3, दिस विल बी 1/3. नाउ Kc विल बी कांस्टेंट, तो Kc आपका 1 ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. पहले जो हमने Kc निकाला था वही सेम Kc रहेगा. दिस विल बी 1/3 into 1/3 डिवाइडेड बाय x कॉमन ले लेते हैं 1 minus 1/3 into दिस विल बी 2/3. तो यहां से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, यू कैन फाइंड आउट x फ्रॉम हियर. तो हमें क्या करना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन से Kc की वैल्यू निकालना है और सेकेंड एक्सप्रेशन में उसको पुट कर देना है, and from there we can find the value of x. Question number 56 and 57 ये आपके इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, इसमें आपको बोनस मिलेगा, ठीक है. तो क्योंकि 57 में आपको हाफ ही क्वेश्चन गिवन है, 57 में आपको हाफ क्वेश्चन गिवन है तो ये आपका बोनस हो जाएगा, राइट. इसमें मिसप्रिंट है तो ये आपको बोनस दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 58. What volume in liter of water must be added to 1 liter of 0.1 molar solution of B to triple alpha. ठीक है, तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को ट्रिपल करना, हमें पता है कि बाय डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीजेस. दिस इज कॉन्सेप्ट. अल्फा इंक्रीज होता है डाइल्यूशन से. तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें आपसे पूछा है कि कितना अमाउंट वाटर ऐड कर दें कि अल्फा क्या हो जाए, आपका ट्रिपल हो जाए. तो यहाँ पे हमें K की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है, दैट इज कॉन्सेप्ट. ओके, तो अगर हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो अल्फा इज इक्वल टू होगा रूट ऑफ KB/C, ये हो जाएगा रूट ऑफ 10 का पावर -5, KB इज 10 to the power -5 गिवन, आइनसन कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय C 0.1. तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 to the power -4 का रूट, दैट इज 10 का पावर -2. 10 का पावर -2 मीन्स 1%, 1% कैन बी नेग्लेक्टेड, अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड. यहाँ से अल्फा कितना आ रहा है, 1% आ रहा है ना. सो अल्फा कैन बी नेग्लेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टू 1. सो 1 माइनस अल्फा को हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मानेंगे. नाउ सी KB इनिशियल इज इक्वल टू KB फाइनल, क्योंकि KB की वैल्यू तो चेंज नहीं होती है. अब KB इज इक्वल टू क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, इसको C1 मान लेते हैं, अल्फा 1 मान लेते हैं, C2 अल्फा 2 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 अल्फा 2 को नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन बनेगा C1 अल्फा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू C2 अल्फा 2 स्क्वायर. C1 की वैल्यू 0.1 है, अल्फा 1 अल्फा मान लेते हैं, C2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, अल्फा 2 ट्रिपल होना है. तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 9, दिस विल बी C2. तो C2 इज 0.1 बाई 9, C1 इज 0.1. तो इनिशियल कंसेंट्रेशन 0.1 है और इसको 0.1 बाई 9 करना है, तो हमें डाइल्यूशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. कितना वॉल्यूम ऐड करना है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2. इनिशियल मोल्स इज 0.1, इनिशियल वॉल्यूम इज 1 लीटर, फाइनल मोलैरिटी हमें 0.1 बाई 9 लाना है इनटू फाइनल वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से.
तो यहाँ से फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा आपका, 0.1 कैंसिल हो गया, 9 लीटर। 9 लीटर फाइनल वॉल्यूम हो गया। इनिशियल वॉल्यूम आपका था 1 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना ऐड किया हमने, कितना ऐड करना पड़ेगा, 9 माइनस 1 दैट इज 8 लीटर। सो यू हैव टू ऐड 8 लीटर ऑफ वाटर टू इंक्रीज अल्फा, टू इंक्रीज अल्फा बाई ट्रिपल। ओके, तो अगर आपको अल्फा ट्रिपल करना है, so you have to add 8 liter of water. Correct answer is 8. क्वेश्चन नंबर 59। 59 में जो आपका कॉन्सेप्ट है, हमें पता है Ka ऑफ एनी एसिड, मैंने आपको क्लास में बताया था, Ka ऑफ एनी एसिड, इसको हमने डिराइव भी किया था, इनटू Kb ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू Kw। Ka of any acid into Kb of its conjugate base is equal to Kw. This is concept, right? तो जब हम लोग किसी भी एसिड का और उसके कॉन्जुगेट बेस का K और Kb का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो Kw आता है। सिमिलरली Kb of base into Ka of its conjugate acid is also equal to Kw. नाउ अगर हम यहाँ पे देखें, वाटर एंड H3O प्लस में जो रिलेशन है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स का रिलेशन है, दे आर कॉन्जुगेट एसिड बेस। वाटर को हम लोग बेस मान सकते हैं, तो H3O प्लस क्या है, बेस H प्लस ऐड करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। इसका मतलब वाटर बेस है और H3O प्लस क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, Kb ऑफ वाटर इंटू Ka ऑफ इट्स कॉन्जुगेट एसिड दैट इज H3O प्लस इज इक्वल टू Kw होगा। Kb of water into Ka of its conjugate acid is equal to Kw. माइनस लॉ ले लेते हैं, टेकिंग माइनस लॉग बोथ साइड्स, taking minus log both sides, so you will get pkb of water plus pka of H3O plus is equal to pkw। kw वाटर का होता है 10 का पावर माइनस 14, सो pkw हो जाएगा 14। सो pkb of water plus pka of H3O plus is equal to 14. This will be the relation. So correct answer is 14. Question number 60. What is pOH of an aqueous solution in which H plus and Kw is given? So since we know that Kw is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus, Kw is 2 into 10 power minus 12, H plus concentration is 10 power minus 2 into concentration of OH minus, this we have to find. So you can find from here OH minus concentration will be 2 into 10 power minus 10. So what will be pOH? Take minus log, so it will be 10 minus log 2. So 10 minus log 2 is 0.3, this will be 9.7. Okay, 9.7 and up nearest whole number will be 10. So you have to divide by 2. So 10 by 2, that is correct answer will be 5. You have to report 5 as the correct answer. So this is last question. That's all.